Today we have somebody with us who is a trailblazer in the world of cybersecurity. Please welcome Mr. Anirban Mukherjee. December of 2015. Product revenue of Mini Orange, entire Mini Orange, $8,800. That was a defining moment in my life. Went ahead and 2019 में वापस 50 जनों को हायर किया. The revenue went shot up to $4 million. तो साइबर सिक्योरिटी में एक मेरा स्लोगन भी है जो मेरे साइट पे भी है, मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ है. परिश्रम प्लस अनुशासन इक्वल सफलता. तो वो साइबर सिक्योरिटी वो है. साइबर सिक्योरिटी में जो जो नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, कस्टमर्स की सुन के उसमें अपन मेहनत करते जाएंगे, डिसिप्लिन से मेहनत करेंगे, सालों साल करेंगे, तो कहीं आगे निकल जाएंगे. आपके पास अगर कुछ पैसा है और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपको वो करना चाहिए जो जिसका पैशन हो आपको. और मेरा पैशन स्पोर्ट्स में है. सो आई स्टार्टेड एन अकेडमी, स्पोर्ट्स अकेडमी, और हमारा एम है जनगण मन बजवा देंगे. तो ओलंपिक्स में जब इंडिया को गोल्ड मेडल मिलेगा तो वो हासिल होगा. Wow, that gives us a lot of hopes. Hi everyone, and welcome to another episode of Beyond Real Boundaries. I am your host Supriti. Today we have somebody with us who is a trailblazer in the world of cybersecurity. He is the founder of Mini Orange, that is making waves in digital security. His entrepreneurial journey doesn't just end there. He is now using all his expertise and energy in giving back to the society in ways more than one. Please welcome Mr. Anirban Mukherjee. Hello, sir. Welcome to the podcast. Thanks a lot for inviting me. I'm very happy to be here, and I'm eager to share my story. Wonderful, sir. So, we would love to know, where did it all start from? Like, we would love to know how your life has been from the very beginning. I'm from Jaipur. I am a Bengali, but I'm actually from Jaipur, so I consider myself a Marwadi. Okay. And my schooling, early years happened in St. Xavier School, Jaipur. Okay. I spent 12 years there. After that, I did my engineering from MBM Engineering College, which is in Jodhpur, Right. for 6 hours from Jaipur. My father was in the police, and very protected environment. My mom was an English teacher. She always wanted to make sure that her kids study in the best school possible, Right. like every mom wants. There was a lot of opposition in the house because my mom chose St. Xavier School, and the fees of St. Xavier School was quite high. She was of the opinion that the children should get the best education possible. So she put her foot down, and basically that ensured that I get the best education possible in Jaipur. St. Xavier's is a very special school because it has so many extracurricular activities. It has a very large campus, multiple football grounds, multiple swimming pools, tennis courts, basketball courts. Then it had something like elocution, drama. You could be good at anything, and they would bring out the best in you. Okay. So I spent about 11 years in school because I started in second grade. Um, I wanted to start in first grade. Yeah. But I got rejected. That's the story of my life. I always get rejected 2 times, and the third time is my charm. So I tried getting in first grade, I could not. Second grade, I again tried, I could not. Then 1 month later, father principal called my mom and said, somebody has dropped out, so your son may come in. Okay. Okay. I always wore specs starting second grade. My confidence level was really low at that time, and I never knew that I needed specs. I always thought I may be dumb because teacher would ask me something, and then next day she would expect something as homework, and I would like, when did this happen? So that continued for a while, and then my mom figured out that I need specs. I got my specs, and then I realized, oh, I'm not that dumb. Actually, I couldn't see what was written on the board. So that happened for several years. Then also my confidence was really low. Then like I said, St. Xavier's had a lot of extracurricular activities. So my mom sent me for swimming. Okay. Guess what? I mean, if you are not good at anything and you're just put in a pool, you're swimming, and you're not. Wasn't much of a social person, so I swam a lot. So if you swim a lot, you become a good swimmer. Yeah. So I became a good swimmer. So I started winning in the school initially, and then in the district, Jaipur district. So when that happened, I realized, oh, I'm good at this. So my confidence rose. Yeah. But I was not very good at studies because of some reasons. I didn't realize what. Then my father realized that maybe he can have somebody come and coach me, Okay. give personal coaching one-on-one.
in the evening. Okay. So he appointed somebody from his office to come teach me. He would teach me for 2 hours, and suddenly in 7th grade, I excelled in all my courses. I got great grades, and I won in the district and state Wonderful. championship. So then I realized, oh, I'm good in both sports And studies. and studies. So that became a nightmare for my friends because their parents were like teasing them, like, look at Anirban. Oh wow. It's a typical Sharma ji ka beta. I was the Sharma ji ka beta. Yeah. So I quite enjoyed it. Yeah. Then I realized that I was not dumb. It's just that वो क्लास में जो पेस होती है पढ़ाने की, वो जो सामने बच्चे बैठे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके पेस से पढ़ाया जाता है, और आई वाज नॉट, आई नीडेड वन ऑन वन कोचिंग. सो उसके बाद मुझे समझ में आ गया. बट व्हाट हैपेंड देयर वाज, I went on to represent Rajasthan in nationals. I played in 8 national level championship. I was captain of my state for swimming, and अच्छा हुआ सब कुछ, बट नेशनल लेवल पे 4th पोजीशन तक आया. इंटर स्कूल नेशनल्स में गोवा में था, 4th पोजीशन आया. इंटर यूनिवर्सिटी था लेटर ऑन, उसमें भी 4th पोजीशन तक आया. फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया कभी. सो आई वाज अ लिटिल अपसेट अबाउट दैट कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया. तो 10th ग्रेड में एक मौका मिला कि मुझे पता लग गया कि यहाँ पे राजस्थान में देयर इज नो सेंट्रली हीटेड पूल. Okay. Even now, Rajasthan government has created one in SMS Stadium in Jaipur. उसमें वो उस समय नहीं था अवेलेबल. तो राजस्थान स्विमर्स वुड ओनली स्विम फॉर 6 months. Okay. तो 6 months में जितना आप नेशनल तक कर सकते हो. बट महाराष्ट्र स्विमर्स, कर्नाटक स्विमर्स, दे स्विम थ्रू आउट द ईयर. सो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, आपको 6 महीने स्विमिंग करके आप कैसे कम्पीट करोगे. True. प्लस तो वो कुछ हुआ नहीं उसका. तो मुझे रियलाइज किया 10th ग्रेड में कि मैं एक काम करता हूँ, 11th में मैं दिल्ली चला जाता हूँ. माय मॉम वाज वेरी एनकरेजिंग कि चलो. तो दिल्ली में जाके डीपीएस स्कूल में गए एडमिशन लेने के लिए. तो डीपीएस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल आए और उन्होंने मतलब ही बिहेव्ड इन अ मैनर दैट लाइक डीमीनिंग मैनर कि भागो ऐसे, कौन इसके बीच में कौन किसको ले सकते हो, तुम कौन हो. तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम 100 से 0 पे आ गया. मैंने लगा जेवियर्स में व्हेन आई एंटर 3000 किड्स एंड टीचर्स, एवरीबॉडी नोज कि ये अनिर्बान है. और यहाँ डीपीएस में मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया मेरा. तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तू काम कर, जेवियर्स में भर्ती हो जा. जेवियर्स दिल्ली भी था, एंड फादर प्रिंसिपल विल राइट अ लेटर एंड आई विल जस्ट गेट एन एडमिशन. ऐसा कुछ Yeah. हुआ. बट मेरा कॉन्फिडेंस एकदम, मैंने कहा वहां पे इतना पॉपुलर, यहाँ पे एकदम 0. तो तालकटोरा स्टेडियम में गया तो वहाँ के कोचेस ने बहुत इनकरेज किया, मेरे सर्टिफिकेट देख के वहाँ एडमिशन दे दिया. देन वी हैड अ फैमिली मीटिंग वेयर वी थॉट कि क्या करना है. मेरा कॉन्फिडेंस तब तक नीचे आ गया था. तो मैंने आई डिड नॉट मेक दैट जंप. Okay. Okay. तो मैं बोला दिल्ली नहीं कर सकता, मैं जयपुर ही चलता हूँ. तो वो जो डिसीजन था मेरा, जयपुर जा दिल्ली अगर चला जाता मैं, तो मे बी आई कुड हैव बिकम अ गुड स्विमर, इंटरनेशनल लेवल स्विमर. बट वो नहीं किया मैंने सही टाइम पे. तो वहाँ चला गया. उसके बाद 11th 12th, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर काफी सालों तक स्विमिंग कंटिन्यू किया. बट इफ यू मिस द डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, देन वो उसमें कुछ हो नहीं सकता. सो आई रियलाइज वेरी क्विकली कि 6 महीने स्विमिंग करके कोई कुछ नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में कुछ नहीं कर सकता है वो. देन देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स एट होम. माय फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर, बट 25th के महीने तक उनके सारे पैसे खत्म हो जाते थे. तो हमारे घर में जो एक हेल्पर था, सूरज जी थे, उनसे पैसे लेके हमारा घर चलता था 25 से 30 तक. तो दैट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माय साइकी कि घर में पैसे नहीं है. सो आई स्टडीड अ लॉट, and what I did was I tried to get through pre-engineering test. Okay. आईटी का मेरा लेवल नहीं था कभी भी. आईटी मैंने एक बार दिया था 12th के बाद. आई रियलाइज कि आईटी घुसने का मेरा कैलिबर नहीं है. तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें किया. Okay. अगेन द सेम थिंग, फर्स्ट टाइम फेलियर, सेकंड टाइम फेलियर, थर्ड टाइम आई गॉट इट. Okay. Okay. एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, कंप्यूटर साइंस मिल गया मुझे. आई वाज सुपर हैप्पी क्योंकि करियर एक डायरेक्शन में जा रहा था. फर्स्ट ईयर में अगेन कंप्यूटर साइंस के बच्चों को या कोई भी बच्चे होते हैं उनको सब पढ़ाया जाता है. इंजीनियरिंग में यू टॉट सिविल, मैकेनिकल, Yeah. First एवरी year. डैम थिंग. Yeah. एंड इट वाज डैम टफ फॉर मी बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आता था मैकेनिकल ड्राइंग वगैरह. आई वाज नॉट वेरी गुड एट दैट. फर्स्ट ईयर का एग्जाम देके देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट में ऐसा था कि मुझे पता था कि मैं इतना घटिया करके आया हूँ कि फेल ही होऊंगा मैं. तो उन्होंने मुझे पास मार्क्स दे दिए, 38 पास मार्क्स थे. मुझे लगा अरे वाह यार, किसी ने मुझे पास मार्क्स दे दिए क्योंकि दे डिडंट वांट टू बॉदर मी Okay. Okay. और होल्ड मी बैक, एंड दे वुड हैव टू टॉलरेट मी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आल्सो. सो जाओ आगे तुम, क्योंकि वैसे भी कंप्यूटर साइंस का था मैं. सो आई वाज वेरी ग्लैड दैट हैपेंड. सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इट वाज ओनली कंप्यूटर साइंस एंड आई वाज गुड एट इट.
एंड आई हैड वाउड कि मैं कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं, आई विल नॉट गेट दिस क्लोज टू फेलियर, आई डोंट लाइक बीइंग दैट। छुट्टियों में बहुत पढ़ाई वढ़ाई की एंड आई वाज ऑलवेज ऑन टॉप। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर अच्छा हुआ। Okay. थर्ड ईयर से वो शुरू हो गया कि जॉब कैसे मिलेगी। सो व्हाट आई डिड वाज मैं जाके एसएसबी क्लियर कर लिया मैंने, अच्छा। एंड आई थॉट कि एयरफोर्स इंजीनियर बन जाता हूँ, क्योंकि एयरफोर्स पायलट नहीं बन सकता था बिकॉज आई हैड स्पेक्स। Yeah. सो एयरफोर्स इंजीनियर का मुझे ऑफर लेटर मिल गया, तो आई वाज सेफ कि थर्ड ईयर के बाद मुझे जॉब मिल जाएगा, बट आई वाज टेकिंग इट एज अ जॉब, नॉट एज अ लाइक आई वाज नॉट रियली सीरियस अबाउट इट। आई वाज थिंकिंग कि कोई अच्छी कंपनी आके मुझे ले जाए तो मैं इसको ऐसे करके कर लूँगा। सो वही किया। फाइनल ईयर में एक कंपनी आई फिर सीएमसी बोल के, उनको बहुत झूठ वूठ बोल के बोला दे वांटेड टू हायर अ टीचर। आई सेड आई विल बी अ ग्रेट टीचर, ये वो। तो मैंने ट्यूशन भी करी हुई थी, 10th ग्रेड से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, जिससे कि स्टाइपेंड मिल जाए थोड़ा। तो किसी तरह उन्होंने मुझे ले लिया, तो आई वाज लाइक ठीक है, और कुछ नहीं होता सीएमसी चला जाऊंगा। एंटायर ईयर नोबडी केम एंड अगेन कॉन्फिडेंस वाज गोइंग डाउन। लास्ट मंथ में लार्सन एंड टुब्रो आ गई। Okay. लार्सन एंड टुब्रो आईटीएल बॉम्बे में जो है, दे केम एंड दे हायर्ड 18 people Okay. from our college and I got it. Okay. So I was like, thank God, मेरा इसमें हो गया। So उसके बाद there was a gap. I joined on 17th August 98 मुंबई में। मुंबई में I used to work very hard because I had that gut feel कि वो घर में पैसे खत्म हो जाता है। I didn't want to get in that. That time the starting salary was 7,000 rupees a month. सुबह 9 बजे जाता था, रात के 9 बजे आता था मैं, क्योंकि मुझे था कि इतनी मेहनत करनी है कि मतलब वो दिन वापस ना आ जाए कभी। So worked very hard. My bosses realized कि I'm good, and they created a team around me. बहुत अच्छा किया लार्सन टुब्रो में, बट ग्रोथ की बहुत इच्छा थी। I wanted growth, and I met my future wife also in Larsen & Toubro. She's also joined in the same date. So we both wanted to do better in life. उस समय उसका बहुत था कि consultants were sent to US, sent to Europe to work and all of that. So I was sent to Japan. So Japan गया, मुझे अच्छा लगा. First guy from my batch of 300 people. It was a big honor. Then I kind of asked my seniors to, अगर मेरे को भेज ही रहे हो तो मेरे वाइफ को साथ में भेज दो, यूरोप भेज दो। तो उन्होंने मना कर दिया। सो दैट ऑफेंडेड मी कि मैंने कहा मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, वो भी ठीक ठाक काम अच्छा काम करती हो, तो हम दोनों को साथ में भेजेंगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ पर्सनल थिंग, मतलब यू आर गोइंग टू गेट द बिलिंग राइट, व्हाट्स सो दे डिडंट लाइक इट, so they removed my name. They kind of asked me if I want to go by myself to US, and because they had a charter to send 25 people to US. मैंने कहा अकेले क्यों जाऊंगा मैं, मतलब आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस वुमन, आई मीन जस्ट सेंड बोथ ऑफ अस। तो उन्होंने बोला नहीं। तो आई काइंड ऑफ गॉट ऑफेंडेड, मैंने कहा तुम क्या भेजोगे मुझे यूएस, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सो आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग आउटसाइड। तो आई वेंट टू बॉस्टन एंड बॉडी शॉपर के थ्रू गया था मैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि बॉडी शॉपर है वो। मतलब इसका मतलब ये कि आपको वहां जाके भी इंटरव्यू देने हैं, और अगर क्लाइंट को पसंद आया तो आपको जॉब कंफर्म होगी। वहां पे ऐसा माहौल है कि वहां पे यूएस में उस 2000 अप्रैल 2000 में पहुंचा था मैं, तो वहां पे ऐसा माहौल था कि इतना सारा काम एंड वेरी फ्यू डेवलपर्स, एंड आई वाज वेरी गुड एट माय वर्क, सो आई गॉट इन इजीली। 7 days में अपने बॉस को इंटरव्यू देके इम्प्रेस किया, फिर उसने काम देखा मेरा, तो ही वाज लाइक वाओ, ये कहाँ से आ गया है? तो उसने मुझे बोला कि "यहाँ तू छोड़ उस बॉडी शॉपर को, मेरे यहाँ परमानेंट बन जाता। दैट वाज साउथ कैरोलिना in a company called Kairos. I've landed there, did my job for 6 months. My close friend, had gone to Cincinnati for studying MS. And he got a job after 2 years in Intel. And Intel placed him in Boston. तो मुझे लगा अरे यार मेरे को भी बॉस्टन आना है, क्योंकि दोस्त के साथ रहना है मुझे, ऐसे कुछ था दिमाग में। तो साउथ कैरोलिना में 6 महीने काम करके वहां से इंटरव्यू, सुषमा आ गई थी तब तक, माय वाइफ, एंड फर्स्ट सुषमा को भेजा वहां इंटरव्यू देने के लिए। उस समय ऐसा माहौल था वहां पे, मतलब बिग सीवियर लैक ऑफ इंजीनियरिंग रिसोर्सेज, जस्ट लाइक नाउ, अभी भी ऐसा ही है। तो सुषमा का जॉब लग गया वहां पे बॉस्टन में, मेरा भी लग गया किसी और कंपनी में, एंड अगेन आराम से लग गया जॉब, बट मैंने रियलाइज नहीं किया कि कंसल्टिंग कंपनी है, they hire at a very high salary and they fire also very quickly. Without realizing all that, I joined. So आ गया मैं बॉस्टन। तो दोस्त के साथ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। The company was growing, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, but it was a services kind of work. So then क्या हुआ, देखा कि जो प्रोजेक्ट्स से बाहर वापस आ रहे हैं ऑफिस में, इन प्रोजेक्ट्स यू आर प्लेस्ड इन सर्टेन कंपनीज एंड देन यू कम बैक टू द हेड ऑफिस, जो भी आ रहे हैं उनको ले ऑफ कर रहे हैं वो।
ओके। एंड ले ऑफ ऐसा है कि अगर मैं H1B पे गया था, तो H1B का जब ले ऑफ होता है तो ही हैज़ टू लीव द कंट्री कंट्री या वेरी सून। तो जब मुझे पता लगा तो मेरी तो हालत खराब हो गई कि हाँ। अगर मेरे को ले ऑफ कर दिया तो क्या होगा? सो आई स्टार्टेड वर्किंग इवन हार्डर। तो अपने बॉस को इम्प्रेस किया हुआ था मैंने। सो मेरा जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, उसने एक दूसरे प्रोजेक्ट जो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा था उसमें डाल दिया मुझे। ओके। सो आई गॉट सेव्ड इन दैट राउंड ऑफ ले ऑफ। 2 महीने मिल गए मुझे, 2 महीने में और जॉब भी करी और दूसरी जॉब भी ढूँढी मैंने। एक बिग कंपनी कॉल्ड एस्पेन टेक्नोलॉजी। 2 महीने बाद वही हुआ, किया, वापस आया हेड ऑफिस में, फ्राइडे को ले ऑफ हो गया। अच्छा। बट आई हैड लाइन्ड अप अ जॉब ऑन मंडे। ओके। So I joined on Monday this company called Aspen Tech. My boss was a big shot vice president and I told him कि कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, ग्रीन कार्ड फाइल करो मेरा बस, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन। सो 4 इयर्स के अंदर मेरा ग्रीन कार्ड आ गया। उसके बीच में इतना असर्टिव था मैं कि मैंने कहा अब यहाँ अगर अमेरिकन ने भगा दिया मुझे तो मैं इंडिया में जाके जॉब कैसे ढूंढूंगा, मैं जॉब कम मिलती हैं ये वो। कनाडा का ग्रीन कार्ड लेके बैठ गया मैं अच्छा। ओके। एज अ बैकअप। या सो आई एम जस्ट टेलिंग यू आई एम वेरी एग्रेसिव पर्सन, तो assertiveness या helps me। तो वो सब किया, फिर ग्रीन कार्ड मिल गया वहाँ का। सो आई जॉइंड, आई फाइनली हैड अ चॉइस कि कौन सी मैं काम क्या करना चाहता हूँ। ये सब तो लाइफ की रेस चली जा रही है। उसके बाद ग्रीन कार्ड जब आया तब मैंने सोचा कि करियर वाइज क्या अच्छी कंपनी है, तो दो कंपनीज हुआ था। एक RSA सिक्योरिटी बोली कंपनी थी ओके। and I got through that company in 2005. And that is cybersecurity. That is it's a very popular company in the world. And उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन। आई वाज सुपर हैप्पी। ग्रीन कार्ड भी था तो मैं 4-5 साल बहुत मन लगा काम किया। बट इंडियंस को क्या है वहाँ ग्रोथ की बहुत लगी रहती है। तो इंडियन इंडियंस का वहाँ क्या माहौल था उस समय, अभी भी शायद यही होगा कि वो पूरे हफ्ते काम करते हैं और वीकेंड पे अपने दोस्तों से मिलते हैं और दोस्तों से मिलके एक ही बात होती है वो कि इंडिया जाना है कि नहीं जाना है। हर साल हर हर वीकेंड पे यही यही हाल। तो वो सब डिस्कशंस करते रहे, 4-5 साल हुआ। आई गॉट प्रोमोटेड इन RSA एज अ मैनेजर। अच्छा लग रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि नेक्स्ट ईयर मुझे सीनियर मैनेजर बना देना चाहिए। इंडियंस का दिमाग में रहता है कि ग्रोथ ऐसे फिनोमिनल ग्रोथ होनी चाहिए, नहीं तो मतलब कुछ लाइफ में कुछ है नहीं। सो वो सब दिमाग में भरा हुआ था। बट जब आप एक प्रोग्रामर से आप एक मैनेजर बनते हो तो आपकी कोडिंग स्किल्स कम हो जाते हैं थोड़े से। ग्रोथ हुई, मेरे डायरेक्टर्स ने मेरे को 2-2 टीम दी। दे वर पोजीशनिंग मी एज अ सीनियर मैनेजर। यूएस में ऐसा रहता है कि 2-3 साल आपको वो पोजीशन देके देख लेते हैं और फिर टाइटल चेंज करते हैं वो। डिलेड डिलेड प्रमोशन कहते हैं इसको। ओके। इससे देख लेते हैं कि बंदा स्टेबल है कि नहीं और सब तरह से स्टेबल है, सब जने उसको मान रहे हैं सीनियर मैनेजर, तब बोलते हैं इसको सीनियर मैनेजर। हमारे यहाँ से कि गाजर देके तेरे को बना देते हैं पहले, फिर बाद में उसको प्रूव करने को। सो मेरे को वो स्टाइल पसंद नहीं था। मेरे को लगा मेरे को 2 टीम दे रखी, सीनियर मैनेजर क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तो ऐसा लगता था मुझे। लेट मी इंटरव्यू आउटसाइड। सो आई वेंट एंड इंटरव्यूड एट अ फ्यू प्लेसेस इंक्लूडिंग Amazon and for the first time in my life I got rejected and for in a technical interview। उससे पहले रिजेक्शंस हुए थे, जैसे कॉलेज एडमिशन में हुए थे, स्कूल एडमिशन में हुए थे। इंटरव्यू में 10 साल से मेरे को रिजेक्शन नहीं हुआ था, मतलब क्योंकि काम इतना करता था मैं कि जाके जो भी बोलता था दे वर ऑल लाइक आ जाओ तुम। तो आई वाज नॉट एबल टू टेक इट। सो इन बिटवीन माय फ्रेंड्स देयर सेड कि हम लोग तो ना बैंगलोर जा रहे हैं क्योंकि हमें हमें देश जाना है अपने। तो वैसे I think 90%, 95% people never think of this and they never come back. But 5% do come back. Of the 5% who come back, 1% actually remain. The 4% go back. क्योंकि यहाँ नहीं सेटल कर पाते फिर वो 10-15 साल यूएस में रहने के बाद। एक तो पैसे की ज़्यादा आदत पड़ जाती है, फिर मेरिटोक्रेसी की ज़्यादा आदत पड़ जाती है। देन आई थॉट अरे ये तो अच्छा आइडिया है, यहाँ ग्रोथ नहीं मिल रही तो इंडिया चलता है। तब तक 2 बच्चे हो गए थे मेरे। तो वाइफ ने बोली तुम पे पता है तुम वहाँ जा रहे हो तो सैलरी वैलरी कम हो जाएगी। मैंने कहा हाँ हो जाएगी तो व्हाट अबाउट द किड्स एजुकेशन? मैंने कहा वहाँ स्कूल में पढ़ेंगे ना। तो उसने बोला कि उसके बाद अगर यूएस आके कॉलेज करना पड़े तो कैसे होगा? मैंने कहा इतनी दूर की कौन सोचता है? एंड आई डिड नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता। मुझे एक ही चीज दिख रही थी कि मेरे को ग्रोथ चाहिए और मुझे इंडिया आना है कि वहाँ ग्रोथ मिल जाएगी मुझे, अगर मिलती है तो वहाँ चलता हूँ। दूसरा एक और था कि माई किड्स वर ग्रोइंग अप एंड आई वांटेड देम टू ग्रो इन अ ब्राउन एनवायरनमेंट। व्हाइट एनवायरनमेंट में वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा कूल होने के चक्कर में दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज नॉट सेफ फॉर देम। सो एंड देन माय पेरेंट्स आर आल्सो गेटिंग ओल्ड, सो आई थॉट कि तीनों रीज़न है, ग्रोथ भी मिलनी चाहिए, बच्चे भी ब्राउन एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं तो
हम साथ में रहना चाहते हैं, थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। अब माँ-बाप का काम थोड़ी है कि सिर्फ़ बच्चों को विदेश भेज दो और बस उसके बाद अकेले पड़े रहो। तो ये सब सोच के मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। तो आई गॉट इन आईबीएम इन हिंजेवाड़ी। आई वाज़ अ मैनेजर काइंड ऑफ अ पर्सन, बट मेरा डोमेन नॉलेज बहुत था और मैं 10 साल से कोडिंग किया था, हैंड्स ऑन कोडिंग। तो मैं किसी भी पोज़ीशन में, चाहे आर्किटेक्चर पोज़ीशन हो, चाहे मैनेजमेंट पोज़ीशन हो, किसी में भी क्वालीफ़ाई कर सकता था। तो मैंने इनको बोला मैं आर्किटेक्ट बन जाऊँगा। तो दे वर वेरी हैप्पी कि सीनियर आर्किटेक्ट के पोज़ीशन पे आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक नेक्स्ट लेवल बैंड दे दिया। ओके। तो मुझे ग्रोथ भी मिल गई। तो मैंने थोड़ा बहुत झूठ बोला कि मैं हैंड्स ऑन कोडिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मुझे हैंड्स ऑन कोडिंग करने का कोई मन नहीं था। तो मैंने जॉइन किया यहाँ पे, थोड़ा झूठ बोल के जॉइन किया मैंने कि आईबीएम में ऐसे करूँगा। आई वाज़ अ गुड रिसोर्स, बट आई हैड नो इंटरेस्ट इन डूइंग हैंड्स ऑन कोडिंग। सो वो झूठ मेरा पकड़ा गया। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि तुम आए हो, सब कुछ कर रहे हो, बट हैंड्स ऑन कोडिंग तुम नहीं करते हो। अब मेरे को नहीं मन था करने का। मेरा करियर आके अटक गया, मतलब झूठ की वजह से आगे अटक गया कि अरे बैंड 9 आ गया हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुझे और ग्रोथ चाहिए। मैं जानता बहुत कुछ हूँ, बट सिंस आई एम इन द बैड ट्रैक, मैं कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ करने को ट्राई किया मैंने, वो यहाँ का एनवायरनमेंट वाज़ डिफरेंट, मेरिटोक्रेसी का एनवायरनमेंट नहीं था यहाँ पे। अभी भी नहीं है, इंडिया में मेरिटोक्रेसी का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा थोड़ा-सा बॉसिज़्म ज़्यादा है यहाँ पे। और यूएस का मेरिटोक्रेसी इज़ अनपैरेलल्ड। सो वो माहौल नहीं मिला मुझे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था मैं। तो मुझे लगा 2 साल बाद कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी, ओके। नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा। तो मेरे 3 दोस्त थे, उन्होंने ना टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड से एमबीए किया हुआ था। एक ने शिकागो बूथ से किया था, एक ने बर्कले स्कूल ऑफ आर्ट्स बिज़नेस स्कूल से किया था, एक ने एमआईटी से एसडीएम प्रोग्राम किया था। ओके। तो मैंने तीनों को एक ईमेल भेजा। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012। ओके। So I came back from US to India in 2010, and 2012 में I sent an email saying चल एक कंपनी खोलते हैं और इस कंपनी के ये गोल्स होंगे कि हम साइबर सिक्योरिटी में कुछ बनाएंगे। अगर कुछ पैसे बनते हैं तो ठीक, नहीं बनते तो भी ठीक, पर कुछ अच्छा बनाएंगे करेंगे। तो वो जो एमबीए करे हुए दोस्त थे, उन दोनों 3 में से 2 दोस्तों ने तो रिप्लाई नहीं किया। एक ने किया। तो आई एंड माय वाइफ एंड ही एंड हिज वाइफ, 4 of us started Mini Orange. Okay. So when you started Mini Orange, how were things in the beginning? Like क्या आप पहले से ही पहले साल से रेवेन्यू अर्न कर रहे थे so that it boosted your morale, और या कैसे था? How was your journey after you started Mini Orange? स्टार्ट किया, गोल्स लिखे, वेबसाइट बनाई, करेंगे क्या? जो साइबर सिक्योरिटी में जितना आता था, उतना कुछ बनाना शुरू किया, बट पैसे भी तो चाहिए। तो I was always interested in this conference called RSA Conference, which is a top conference in cybersecurity. It is held every year in San Francisco. Okay. तो मैं वहाँ जाता था और चाहे मेरी कंपनी स्पॉन्सर करे चाहे नहीं करे, खुद के पैसे से ही चला जाता था मैं। सो वहाँ जाके मैंने कस्टमर ढूंढना शुरू किया। तो एक बंदा मिला जो एक कंपनी का सीटीओ था, तो उसने मुझे बोला कि तेरे को मैं एक सर्विसेज प्रोजेक्ट देता हूँ। वेरी हैप्पी। आई हायर्ड 4 इंजीनियर्स हियर। इतना ही बड़ा ऑफिस था मेरा, Okay. इतना, इससे भी थोड़ा छोटा शायद। और एक टेबल रखी बीच में, 4 जनों को हायर किया एसआईटी से, और 2 जने बैठ गए हम इधर और 2 जने थे न्यू जर्सी में। Okay. काम करना शुरू किया 2013, 14, 15 तक। तो 15 में क्या हुआ, माय मॉम फेल वेरी सिक Okay. एंड आई वाज अटेंडिंग टू माय मॉम एंड आई रियलाइज्ड कि जिस कस्टमर ने हमें वो काम दिया था सर्विसेज का काम अच्छा चलने लगा। 8-10 जनों की टीम बना ली, 2-3 छोटे-छोटे रूम्स और ले लिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो उस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया। अच्छा। दूसरा सीटीओ आया। उस सीटीओ को लगा कि हम क्या कर रहे थे, उनका जो काम करते थे, वो डिलीवर करने के बाद उसकी मार्केटिंग करने के लिए वो काम के बारे में लिखते थे खुद की साइट में, जिससे कि दूसरे कस्टमर हमें मिल जाए उस तरीके के। हाँ। उस नए सीटीओ को ये बात पसंद नहीं आई। उसने बोला कि ये चोरी है। तो उसने यूएस में केस कर दिया हमारे पे। Okay. सो उस समय ज़्यादा रेवेन्यू था। रेवेन्यू वाज़ इन लाइक सिंगल डिजिट्स। केस कर दिया वहाँ पे यूएस में। और तो माय पार्टनर इन यूएस ही गॉट वेरी वरीड। उसने एकदम से रिज़ाइन कर दिया। बोला कि ये सब मैं नहीं कर सकता। ही एंड हिज वाइफ लेफ्ट उस केस के बाद चक्कर में। तो केस निपटाया, लॉयर्स हायर किए, केस निपटाया उन्होंने। समझाया कि चोरी वोरी नहीं है, हम तो मार्केटिंग करने गए थे। बट एज अ पेनल्टी दे डिमांडेड अ ह्यूज सम ऑफ मनी। Okay. हमारा बैंक बैलेंस जीरो हो गया यूएस में। उसके बाद लॉयर्स यूएस के बहुत शानदार शातिर होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये हमने इतना काम किया है इस केस पे,
1 करोड़ में से हमने 50 लाख 60 लाख 80 लाख उनको दे दिए, या 50 लाख हमने दे दिए, 50 लाख हमारे पास रखे हमारे फीस के हिसाब से। बट दिस नॉट इनफ, हमने काम ज्यादा किया है, तो तुम अपने कंपनी का परसेंटेज दे दो हमें 30%। तो ओके। इस तरह से वो स्क्रू कर रहे थे हमें। इस चक्कर इस प्रेशर में आके हमारे पार्टनर ने रिजाइन कर दिया। मैं जा रहा हूँ, आई एम नॉट हियर। So my mom was sick, and this case was breathing down heavily on my neck. There was no customer, there was no money. So I thought कि दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आईबीएम में वापस जा सकते हैं। तो आईबीएम में भी थोड़ा बहुत नाम कमाया था। They knew that my domain knowledge is very good. So a guy sitting in Austin, he knew that, so he offered me a job ओके। कि वहाँ आ जा, वहाँ प्रोडक्ट मैनेजर बन जा मेरे अंडर में। तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट मैनेजर बनूंगा ऑस्टिन में जाके आईबीएम में। तो आई प्रपोज टू माय वाइफ दैट लेट्स टेक अ लोन फ्रॉम माय डैड। ओके। तो जैसे ही उसने ये सुना, उसने कहा नहीं, लोन लेके आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, मैं तो जा रही हूँ जॉब करने के लिए। सो शी क्विट एंड शी आल्सो रिजाइंड, शी वेंट एंड शी जॉइंड क्रेडिट स्विस। सो क्रेडिट स्विस या दैट एट दैट टाइम इज अ गुड बैंक एंड या ऑल। तो मैं अकेला रह गया वहाँ पे। तो मैंने बोला पापा से कि पापा से बोला कि पापा आप मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे दो। फिर पापा भी स्मार्ट तो बहुत थे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 ईयर। सो पापा ने बोला मुझे कि तुम्हारा महीने का खर्चा कितना है? मैंने बोला 5 लाख है। तो उन्होंने कहा हर महीने तुम्हें 5 लाख दूंगा मैं। अच्छा। ओके। तो अगस्त, आई थिंक अगस्त ऑफ 2015 में ही सेंट 5 लाख टू मी, ओके। एंड दैट वाज ऑल स्पेंट। 10 एम्प्लॉइज थे, हम्म। उनको उनको पैसे देने थे, रेंट देना सारे था, सब कुछ था, सब मैं ही करता था वो सब। तो मैंने किया वो, पर कस्टमर भी नहीं था। तो कस्टमर ढूंढने के लिए रात को फोन करना, यूएस ये सब करने की कोशिश किया, कोई नहीं मिल रहा था, सर्विसेज का नहीं मिला मुझे। तो एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाना शुरू किया हमने। अगस्त में 5 लाख आए पापा से, कुछ रेवेन्यू कुछ नहीं हुआ, जीरो। सितंबर में जीरो, फिर 5 लाख खर्च हो गए। अक्टूबर में जीरो, 5 लाख फिर खर्च हो गए। नवंबर में जीरो, फिर 5 लाख खर्च हो गए, तो 20 लाख खर्च हो गए। दिसंबर में वी मेक आर फर्स्ट प्रोडक्ट रेवेन्यू, ओके। $8,800, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड मैंने पापा को फोन किया, बोला पापा इस महीने आपको पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। तो दैट वाज डिफाइनिंग मोमेंट इन माय लाइफ। ओके। December of 2015, product revenue of Mini Orange, entire Mini Orange, $8,800 USD. सो मेरा पूरा खर्चा निकल गया उससे। सो आई वाज लाइक वाओ, मजा आ गया। 2016 में हाँ। entire year the product revenue was $250,000, $250,000। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। $250,000 मतलब 2 करोड़ रुपए हो जाता है, होता है मोर देन वी हैड एवर अर्न एज अ सर्विसेज कंपनी। राइट। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई, बहुत खुश थे, तो और लोगों को हायर कर लिया, 5-7 लोगों को हायर कर लिया। 2017 में वी मेड $500,000, 100% ग्रोथ हो रही थी। तो उस समय मेरे लिए बहुत बड़े नंबर थे। तो 2000 दैट इज 4 करोड़। 2018 में हमने थोड़ा और बड़ा ऑफिस ले लिया, दूसरा ऑफिस लिया, 25-30 लोगों को हायर कर लिया। दिसंबर में वी वर कैलकुलेटिंग, माय कॉलीग एंड आई, एंड वी टोटल कि पूरा साल का रेवेन्यू कितना हो, क्रॉस $1 million इन रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू 8 करोड़। सो मतलब वाह। फिर भी मन में डर था कि ये तो लक चल रहा है, अभी बंद हो जाएगी कंपनी, पता नहीं था कुछ। फिर 2018 में जब मिलियन किया, तो लगा कि अरे ऐसा लग रहा है कि कंपनी बंद नहीं होने वाली शायद, कहीं तो क्योंकि सही कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है ना, तो अभी राइट। थोड़ा डर, एंटरप्रेन्योर्स को डर बहुत लगता, मेरे को तो बहुत डर लगता था। तो कंपनी बंद नहीं हो जाए, अपने ज्यादा एक्सपेंड कर लिया, ज्यादा हायर कर लिया, क्या होगा, पैसे कहाँ से देंगे। 2018 में आई डिसाइडेड कि $1 million बना लिए, ऐसा लग रहा है भगवान एक डायरेक्शन ले जा रहा है। आई वाज इन बॉम्बे, आई वाज टॉकिंग टू माय अकाउंटेंट सिटिंग हियर इन पुणे। तो उसने टोटल करके बताया। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर एक काम करते हैं, लेट्स स्पेंड 10 करोड़। हमें एक ही चीज आती थी स्पेंड करने, और लोगों को हायर कर लो, हाँ। उतना ही आता है हमें, हाँ। और कुछ खास आता नहीं था। तो हमने क्या किया, हमारी टीम ने जाके 50 लोगों को हायर किया फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन राजस्थान। ओके। तो आई लाइक MBM, माई ओन कॉलेज, कोटा, दिस इज माई वाइफ कॉलेज, अदर कॉलेजेस इन राजस्थान, वहां से, और SIT, PICT, पुणे के कॉलेजेस, राइट। 50 जनों को हायर कर लिया। हायर तो कर लिया, बहुत डर लगे, जुलाई में ज्वाइन करने वाले थे, सैलरी कहाँ से देंगे एक का। तो मैं फिर पहुंचा SFO, और वहां से मैंने सोचा कि किसी से बोलता हूँ कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड दे दे। सो RSA कॉन्फ्रेंस आई गो एवरी ईयर। तो एक बंदा मिला वहां पे मुझे, तो उसने बोला, उसने पूरी स्टोरी सुनी मेरी। उसने बोला तुम क्यों घबरा रहे हो, यू आर इन द राइट पाथ। अगर तुम वापस सर्विसेज में लग जाओगे तो तुम प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा नहीं, तुम प्रोडक्ट रेवेन्यू से इसको करने की कोशिश करो। तो उसकी बात सुन के वापस आया मैं, प्रोडक्ट रेवेन्यू करने की कोशिश करी, थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए थे।
जुलाई में टीम आई, 50 जनों की टीम ज्वाइन करी जुलाई में, और आई एम वरीड कि इनके पैसे आप साल भर कैसे दोगे। They worked in July, August, September, shot up, revenue shot up. Wow. So we made 1.7 million that year. Full तो year. 50 जने जो थे वो आए और असिमुलेट हो गए, कहाँ से सैलरी आई पता ही नहीं कुछ, तो ऐसा लग रहा था कि भगवान रास्ता दिखा रहा है, तो कॉन्फिडेंस आ गया, अरे 50 जनों को लेके आप ऐसे कर सकते हो। वेंट अहेड एंड 2019 में वापस 50 जनों को हायर किया, रेवेन्यू वेंट शॉट अप टू $4 million। जनरली क्या होता है, आप प्रोडक्ट बनाते हो बेचते हो, मैं तो सप्लाई करे जा रहा था हाँ लोगों को, और हाँ वो खुद ही हो जा रहा एक्सपोजर की था। वजह से अपने आप ही हो जा रहा था, मतलब सो मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, $4 million हो गया। The next year I hired 50 people again and the revenue went up to I think 6.7 million or something. Big numbers for me. फिर 3 साल ये करने के बाद I became like अरे यार 50 जनों से मेरा रिस्क एपेटाइट मेरा ठीक नहीं हो रहा, इस बार एक काम करते हैं, पूरे इंडिया में सारे कॉलेज से 150 people 3 times I will hire. So we went around India and hired 150 people from all colleges, non-colleges, इतने सारे कॉलेज, NIT वैनिटी सब जगह पहुंच गया, रेवेन्यू शॉट अप अगेन। सो ये सब करते 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 2020 आ गया, कोविड आ गया। कोविड में मुझे लगा कि अब तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके काम हो रहा है, अभी घर में बैठेंगे सब और घर में बैठ के काम करेंगे कि नहीं पता नहीं, मुझे पता नहीं। उल्टा हुआ, घर में बैठे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को घर में बैठा दो तो उनको कुछ आता तो है नहीं, वो काम ही करते रहते हैं, वो रेवेन्यू शॉट अप बिकॉज ऑफ घर में बैठने से। Oh, wow. सो Yeah. इट वेंट अप टू 9 मिलियन। सो ये सब करते करते अब 2022 आ गया, देन आई रियलाइज कि ये सब सिलसिला जो है उसमें a lot of investors became interested in us. One particular investor I met in San Francisco, he taught me how to do financial modeling. Okay. And मेरे को ग्रोथ हो रही थी, मेरी रेवेन्यू ऊपर जा रहा था, पर ग्रोथ परसेंटेज मेरा कम हो रहा था। Okay. तो मैं उससे सीख के आया कि ग्रोथ परसेंटेज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, उसने मुझे काफी कुछ सिखाया। आई केम बैक एंड इम्प्लीमेंटेड दैट थिंग इन माई टीम एंड वी फिगर्ड आउट कस्टमर्स को पकड़े रखना होता है, चर्न नहीं होने देना होता है, रिन्यूअल होना चाहिए ग्रोथ के लिए, न्यू सेल्स से पहले ओल्ड जो है उसको मेंटेन कर रखना, फिर उसके बाद न्यू सेल्स अच्छा करना, उससे ग्रोथ रेट अच्छी होती है। वो सब सीख के फाइनेंशियल मॉडल्स इंप्लीमेंट किए कंपनी में, वी क्रॉस्ड 100 crore। सो 100 करोड़ करने के बाद तभी तो जोश एकदम डबल था। तो हमने सोचा कि अब ये फॉर्मूला जो ये इनफ नहीं हो रहा हमारे लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बानेर में बैठ के हमारी साइबर सिक्योरिटी सेल करते हैं 60 कंट्रीज में, Okay. 25,000 कस्टमर्स। तो हमने कहा ये अच्छा है, बट नाउ वी शुड गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड डू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। Okay. तो लास्ट ईयर वी डिसाइडेड टू गो टू 25 cities अराउंड द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, मिडल ईस्ट में 8 कंट्रीज, यूरोप में अनगिनत कंट्रीज, probably all, US, नॉर्थ अमेरिका में इतने सारे cities. So 100 of us traveled to 25 cities around the world and 150 करोड़ बन गया। और इस साल ऐसा लग रहा है कि अब क्या हो रहा है कि इतने सारे जब एक्सपोजर होता है तो आप जो साइबर सिक्योरिटी में भी काफी सारे वर्टिकल्स होते हैं आपके। Okay. तो टीम अच्छा कर रही है तो कस्टमर्स खुश होके बोल रहे हैं कि अच्छा तुम टेबल चेयर बनाते हो, चलो लाइट भी बना दो, दरवाजे भी बना दो, एसी भी बना दो, इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं वो। वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सो वी आर गोइंग इनटू मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, वी आर गोइंग टू DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन, क्लाउड एक्सेस, कैसबी बोल के एक प्रोडक्ट होता है वो कर रहे हैं। तो बहुत अलग अलग वैरायटी में चल जा रहा है और सारे कस्टमर्स बोल रहे हैं, ताले बजा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, हमारी टीम एक्सपैंड कर जा रही है और बने जा रही है। That gives us a lot of hopes. जबकि हम लोग भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, we really don't know how it's going to go forward. But आपका स्टोरी सुन के we just it feels कि as long as we are persistent and we know what we are doing and we are aggressively and passionately doing what we are doing, तो हो जाना चाहिए चीज। इफ यू गेट डेटा एंड इफ यू आर विलिंग टू चेंज, ओके चेंज करना आसान नहीं होता है। काफी जने चेंज करने में बहुत टाइम लगा देते हैं और उनकी स्पीड कम रहती है और वो चेंज करना नहीं चाहते हैं। चेंज करना अभी क्या होता है कि जो 4 जनों को चलाने के लिए जो समझ चाहिए थी और 650 लोगों को चलाने के लिए जो समझ चाहिए वो अलग है, और वो 650 लोग ही हमें पढ़ा देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, वो खुद ही पढ़ा देते हैं मुझे। अब ये जो डेटा आता है मेरे पास, उसमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं उनकी बात सुनूं या अपनी करूं। कई बार मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, पर उसके लिए मुझे चेंज होना पड़ेगा। अगर आप चेंज के लिए रेडी नहीं हो, आप सुबह 4 बजे उठने के लिए रेडी नहीं हो, आप रात को 12 बजे काम करने के लिए रेडी नहीं हो, फ्राइडे को आप काम करके
खुश होके डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को, कस्टमर शाबाशी में आपको पैसे भी दे रहा है और काम दे रहा है जो वीकेंड पे खत्म होना चाहिए। अगर आप वो करने को राजी हो तो ये सब मिलेगा। अच्छा। एक के बाद एक चैलेंज। अभी तो सिर्फ हैप्पी स्टोरी सुनाई थी मैंने, इसके पीछे हमारी नाइट सपोर्ट हुआ करती थी। तो 2 जने थे जो 2:30 बजे, एक जना 2:30 बजे, एक जना 4 बजे तक जग जग के काम करते थे वो। अभी 50 जनों की टीम है जो रात को भी बैठी रहती है पूरे वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को देखने। तो पहले नहीं थी। जो सुबह काम कर रहे हैं वही शाम को काम कर रहे हैं। और मुझे आदत है सुबह 9 साढ़े 9 बजे स्क्रम करने की। अच्छा। चाहे आप 2 बजे तक काम कर रहे हो, चाहे 4 बजे तक, सुबह 9 बजे मेरे स्क्रम में दिखने चाहिए। एंड दे सपोर्टेड मी इन दैट। इतना क्रिप नहीं किया उन्होंने। और आज ये हाल है कि एक-एक जने की टीम 100-100 150 जनों की है। They are deciding who is going to go to Abu Dhabi, who is going to go to Europe. Sir, so we would love to know what are your plans for Mini Orange here on? अभी तक मिनियाज ने जो सक्सेस अचीव किया है वो हम कुछ छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स में किया है हमने। We are profitable, we are a large team. Yeah. But since last 12 years, the plan was to do something groundbreaking in cybersecurity. Okay. And any money that we earn from that is a byproduct of the fact that we are working on something. The money was not a focus. तो वो हमने अभी तक अचीव नहीं किया है। So अभी तक सर्वर साइड प्रोडक्ट्स में कहा जाए तो वी हैव नॉट रियली मेड अ ह्यूज मार्क। Okay. We are working very aggressively to make cybersecurity products that are going to be essential and groundbreaking and critical for any customer around the world, especially small and medium businesses. क्योंकि क्या होता है, सब large customers के लिए बना देते हैं products और small medium को छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे पैसे आने का उम्मीद थोड़ा कम रहता है। बट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का एक यूनिक फीचर है कि वो आपको जो रिक्वायरमेंट्स बताते हैं वो नेक्स्ट लेवल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो जहां तक वो बड़े वाले पहुंचते नहीं है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सो प्लान इज कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी ऐसी बननी चाहिए कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो। और नाम तब होगा जब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे। Right. और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स अभी हमारे बनने शुरू हो गए हैं, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो व्हेन वी मेक हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। सो Okay. साइबर सिक्योरिटी में तो वो है। तो साइबर सिक्योरिटी में एक मेरा स्लोगन भी है जो मेरे साइट पे भी है, मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ है। Okay. परिश्रम प्लस अनुशासन इक्वल सफलता। मतलब परिश्रम करोगे और डिसिप्लिन परिश्रम करोगे, मतलब रोज करोगे तो ही सफलता मिलेगी। तो वो साइबर सिक्योरिटी के लिए वो है। साइबर सिक्योरिटी में जो नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं उनको उनको कस्टमर्स की सुन के उसमें अपन मेहनत करते जाएंगे, डिसिप्लिन से मेहनत करेंगे, सालों साल करेंगे तो कहीं आगे निकल जाएंगे। उसके अलावा एक और गोल था 10th ग्रेड में, वो सही डिसीजन नहीं लिया था। ताल कटोरा में जाके कर सकता था पर वो नहीं कर पाया। और फिर इंडिया का हाल देखते हैं, ओलंपिक्स में इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। 1.5 बिलियन लोगों का होना चाहिए। तो एक स्पोर्ट्स का रह गया कुछ अचीव करना। तो अब सोचा मैंने कि कोविड में हमने ना बहुत वो किया था, डोनेशन वगैरह किया था। देन आई रियलाइज कि डोनेशन सभी कर रहे हैं। आपके पास अगर कुछ पैसा है और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपको वो करना चाहिए जो जिसका पैशन हो आपको। और मेरा पैशन स्पोर्ट्स में है। Okay. सो आई स्टार्टेड एन अकेडमी, स्पोर्ट्स अकेडमी। और स्पोर्ट्स अकेडमी में 2 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था। देयर आर 50+ एथलीट्स टुडे Okay. हु आर फ्रॉम 8 to 9 स्टेट्स। मणिपुर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगह से यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं पूना में। और हमारा एम है जनगण मन बजवा देंगे। Yeah. तो जनगण मन कैसे बजेगा? जनगण मन तभी बजेगा जब आप गोल्ड मेडल लेके आओगे कहीं। Right. और वो स्टेज जिसमें पूरा वर्ल्ड देख रहा हो, विच इज ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में जब इंडिया को गोल्ड मेडल मिलेगा तो वो हासिल होगा, जनगण मन बजवा देंगे। तो ये 50 एथलीट्स भगवान अगर मैं साथ दे तो 50 से 500 और 500 से 5000 एथलीट करेंगे हम कभी। Yeah. जिससे कि ये सारे एथलीट पूरी मेहनत से काम करें, मेहनत करें और देश का नाम रोशन हो। और जब वो गोल्ड मेडल जीते तो अपना राष्ट्रगान बजे वहां पे। Oh wow. That actually gives me goosebumps. Also आपने जैसा कहा जितना हमारा पॉपुलेशन है उतना हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उतना नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स में इतना फोकस नहीं है। फिर भी काफी चेंज हुआ है। Yeah. और हर ओलंपिक्स में जाके हम थोड़ा सा और बेटर करते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली मेरा भी एक योगदान होना चाहिए। और मेरा लाइफ का वही एम रह गया है कि वो जनगण मन बजवाना है एक दिन। और वो तभी पॉसिबल है जब अ लार्ज नंबर ऑफ एथलीट्स आर फोकसिंग फुली ऑन स्पोर्ट्स। क्योंकि वो अचीव वर्ल्ड लेवल अचीव करना आसान नहीं होता। बहुत सारे साइकोलॉजिकल, मॉनिटरी, मेंटरिंग इश्यूज, बैकग्राउंड इश्यूज होते हैं एथलीट्स के। और देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड।
Right. ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी जिसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो आप क्या करते हो कि आप इस डायरेक्शन में पैसा डाले जाते हो, सब 50 बच्चों को यहाँ पे रखते हो, खाना बना के खिलाते हो, इक्विपमेंट देते हो, ट्रेनिंग कोचेस हायर करते हो, इंजरीज में उनकी देखभाल करते हो, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करवाते हो उनको, और उसके बाद वो उसमें इंटरनेशनल लेवल में जीतते हैं, इंटरनेशनल लेवल में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां से सीखते हैं हम, हारने के बाद सीखते हैं कि क्या क्या चेंज करना है नेक्स्ट ईयर। तो वो एक प्रोसेस है, 5 साल हुए हैं उसको चलते Okay. हुए। तो वो सब चलता रहता है, तो इट्स अ बिग लर्निंग फॉर मी, बट इट्स अ वेरी वेरी एंजॉयबल एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। अभी 50 बच्चे हैं जो मतलब हु आर कंप्लीटली इनटू स्पोर्ट्स एंड दे आर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम। इतना तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाता क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा काम पैसे कमाना है, और वहां पे एक टीम खड़ी कर रखी है मैंने जिससे कि वो, पर फिर भी जब टाइम मिलता है आई स्पेंड। They are winning in national levels. In triathlon, we have reached international stage also. इंटरनेशनल स्टेज पे जीतने का के पास नहीं पहुंचे अभी तक हम। Okay. और उसके लिए हमारी खुद की एकेडमी होनी चाहिए। अभी तो हम बालेवाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। Okay. तो वो सब इट्स अ मल्टी ईयर प्रोसेस, तो लगे हुए हैं उसमें और जनगण मन बजवा के रहेंगे। थर्ड पैशन ये है कि um, अब आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी 650 लोगों को हो गई है। 150 करोड़ लास्ट ईयर किया था, इस साल 200 करोड़ का चांस लग रहा है, 200 करोड़ हो जाएगा। अगर कर रहे हैं 200 करोड़ तो उसमें से प्रॉफिट भी बच जाता है। सो नाउ द इशू इज कि वो प्रॉफिट का करें क्या। साइबर सिक्योरिटी कंपनी बढ़ा रहे हैं, बट आई ऑल्सो फील कि अगर आपके पास बानेर में एक ऑफिस है तो वहाँ पुणे महाराष्ट्र के लोगों का कोई बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब पैसे कमा के आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ियां तो मैंने बहुत खरीदी हैं, घर भी खरीद लिए खूब, बट द पॉइंट इज उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी टू मेक श्योर दैट योर कंपनी इज रेलिवेंट, इज अ Right. रेलिवेंट कंपनी। How does cybersecurity help a common man? Hmm. Cybersecurity may help somebody who is struggling with fraud, but there are people who are much more poorer than that. So Right. I feel like society से relevance होना चाहिए. And many years ago, my mom struggled with kidney disease and kidney transplant, kidney failure, and she passed away in 2016. Okay. So उनकी याद में एक हॉस्पिटल खोला है हमने। Okay. इट्स बानेर में ही है, रीटा मुखर्जी हॉस्पिटल, एंड उसका एम है फ्री हेल्थ केयर फॉर द पुअर। Okay. तो उसमें क्या है, हमारे पास 5 or 6 डॉक्टर्स आर देयर, एंड देन देर आर 10 to 15 नर्सेज, देर आर मशीन्स, डायलिसिस मशीन्स, ईसीजी, एक्सरे मशीन्स, सोनोग्राफी मशीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो दवाइयाँ भी हैं, तो जो भी आता है उसमें उनको कंसल्टेशन करते हैं डॉक्टर्स, फिर हमारे मेडिसिन स्टोर से उनको मेडिसिन देते हैं, और सब कुछ फ्री में करते हैं। टेस्ट वेस्ट होता है, लैब टेस्ट वगैरह सब जगह फ्री में होता है। सो आज ये हाल है, उसको भी 5 साल हो गए, कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था उसको, एंड आज 100 to 150 पेशेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट एवरी डे। Okay. Okay. लाइन लगी रहती है उस हॉस्पिटल में, हाँ, बहुत नाम हो रखा है उसका। Okay. तो अभी ये प्लान है कि फ्री हेल्थ केयर फॉर द पुअर सिर्फ बानेर में तो जरूरत नहीं है उसकी, उसके अभी लोग आलंदी से भी वहां आ रहे हैं उसके Okay. नाम सुन के। और डायलिसिस मशीन हमारी 2 डायलिसिस मशीन लगाई है। सो डायलिसिस में क्या होता है, किडनी फेलियर जब होता है तो डायलिसिस ऑर्डर करते हैं किसी किसी के, डिपेंडिंग ऑन द किडनी स्टेट ऑफ किडनी, 3 डायलिसिस होती है एक हफ्ते में, किसी किसी के 2 होती है। Okay. तो इनका खर्चा 7,000 रुपीज अ वीक आता है। इट्स अ लॉट फॉर 20, जिंदा रहने के लिए 30,000 अ मंथ स्पेंड करना होता है। हमारे यहाँ पूरा फ्री है ये। Okay. तो हमारी डायलिसिस मशीन शुरू होती है सुबह 7 बजे से अगले दिन 5:30 बजे तक। अच्छा. 2 बेड पे डायलिसिस चलती रहती है, 10 जने डायलिसिस, फ्री डायलिसिस। सो अभी मन है कि उस हॉस्पिटल को बड़ा करें और दूसरा एक हॉस्पिटल बनाए, उसमें भी डायलिसिस मशीन लगाएं, सारे लैब मशीन लगाएं, और जिनको फायदा हो। 100-150 का हो रहा है अभी फायदा। आई आई वांट दैट कि फ्री हेल्थ सर्विस हो जाए, कि ऐसा नाम हो उसमें कि पुणे में और महाराष्ट्र में लोगों को ऐसा लगे कि बस रीटा मुखर्जी हॉस्पिटल तक पहुंचना है, उसके बाद ही बचा लेंगे। सो साइबर सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर, 2 और छोटी छोटी चीजें हैं। जब आप 650 के लिए, 600 लोगों के लिए आप कुछ करने जाते हो तो आप देखते हो कि इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। These engineers are studying in colleges where they are either taken care of by the hostels or the parents जहाँ रहते हैं ये लोग। तो जब ये जॉब करने आते हैं, they are like still there's a long way to go where they can manage their own life। तो हमारा एक फंडा है कि हम इनको अकोमोडेशन हमारे यहाँ ही देते हैं। तो Okay. हमारे गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ अप्रोक्सीमेटली 200 पीपल, 650 में से 200 लोग हमारे गेस्ट हाउस में ही रहते हैं। Okay. तो गेस्ट हाउस में रहेंगे तो खाना भी खाएंगे, तो हमारे कैफेटेरिया है, वहाँ 3,000 प्लेट बन रही है दिन की। Okay. तो इनके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर वहाँ बनता है, और अगर ये बीमार पड़ते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में इनका इलाज हो जाता है। तो
तो सो दैट इनका फोकस पूरा काम में रहना चाहिए और दे कैन वर्क, वी एनेबल देम। पर आप अगर इतने लोगों के लिए खाना बना रहे हो तो खाना वेस्टेज होएगा थोड़ा। तो एक प्लान आया कुछ महीने पहले कि ये ठीक नहीं हो रहा और इतना खाना हम बांट भी तो सकते हैं। सो तब से शुरू किया है। 800 पीपल आर फेड एवरी डे। हमारे हॉस्पिटल के नीचे लाइन लगती है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट डिलीवर होता है और शाम को डिनर डिलीवर होता है। तो 800 पीपल आर बीइंग फेड फ्रॉम आवर कैफेटेरिया एवरी डे नाउ, 400 इन द मॉर्निंग, 400 इन द इवनिंग। उसके बाद सोसाइटी में जो छोटे छोटे इश्यूज नजर आते हैं, वो एक चांस एनकाउंटर हुआ कुछ लीगल लॉ से। तो पता लगा कि अपना जो जेल है यरवड़ा जेल, तो यरवड़ा जेल में क्या है कि कॉन्विक्ट्स रहते हैं और अंडर ट्रायल्स रहते हैं। तो क्या होता है, अंडर ट्रायल्स को बेल मिलता है। जिससे बेल मिलता है तो क्या होता है कि मान लो कुछ आपने एक 10,000 रुपए की चोरी करी या 1,000 रुपए की चोरी करी, तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट के पास ले गए। गरीब थे आपने इसलिए चोरी करी, तो आपको जेल में डाल दिया। तो जज ने बोला 1,000 रुपए की चोरी करी है, पहली फर्स्ट ऑफेंडर है, इसको मैं बेल दे देता हूँ। पर बेल का कंडीशन होता है कि 10,000 रुपए जुर्माना भरो। तो चोरी करने के 1,000 और जुर्माना कितना हुआ, 10,000 का। तो अगर 10,000 रुपए होते तो चोरी क्यों करते वो? तो लॉ इज लाइक दैट, लॉ इज स्ट्रिंजेंट, लॉ हैज टू बी फॉलोड। सो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बेल मिली हुई है, पर क्योंकि उनके पास 5,000 10,000 रुपए नहीं है, वो जेल में सड़ रहे हैं। आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। तो हमने एक लीगल आर्म खोला है मिनी ऑरेंज का, जिसमें 4 लॉयर्स हैं। Okay. We have a tie-up with Yarwada and DLSA, which is a branch that deals with these kind of prisoners who are poor, and we fight for their release. We started this about 6 months ago, and we have a tie-up now, and we have sought release of 16 under trials now. Okay. तो हम हमारे ये में कि जाओ वहाँ पे, जो फ्रीडम इज अ मेजर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबॉडी। जिसको जिसकी फ्रीडम ले ली जाती है उसको पता रहता है कि कितनी बड़ी बात है। जैसे आपने स्टार्ट किया था विद स्टेटमेंट कि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एज अ चाइल्ड टू नाउ व्हेन यू आर डूइंग सो मच टू गिव बैक टू द सोसाइटी, इट इज रियली कमेंडेबल एंड इंस्पायरिंग आपने जो किया है। एंड I'm pretty sure everybody who is watching is going to take in lessons from this key. uh, if you have that faith, that perseverance, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, आई ऑल्सो रियलाइज ड्यूरिंग द लास्ट सेवरल ईयर्स कि गट फील जो होता है, क्या होता है कि अगर अपने को लगता है कि ये करना चाहिए और आप किसी के साथ काम कर रहे हो, आप फैमिली के साथ काम कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ या कॉलेज के साथ, और उनको लगता है कि नहीं ये नहीं वो होना चाहिए, तो क्या होता है, एक मिक्स डिसीजन लिया जाता है। तो आप फुली अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हो, बीच का कुछ सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि Right. सबको सेटिस्फाई करके जो होता है। तो मेरा एक लर्निंग ये है कि कई जनों का गट फील बहुत स्ट्रांग होता है, पर वो फॉर डिफरेंट रीजंस वो अपना गट फील को की सुन नहीं पाते हैं वो। राइट। एंटरप्रेन्योर्स के अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आपके अंदर ऑलरेडी है, तो गट फील आपका बहुत स्ट्रांग है, उसकी सुननी चाहिए। मैं मीडियोकर भी था पढ़ाई में, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग इंसान के साथ ऐसा कैसे हो गया। और मुझे लगता है कभी-कभी भगवान को आएगा आइडिया कि अरे यार गलत आदमी को कर दिया, तू नहीं था वो, उसको करना था, तू साइड में हट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कब तक मौका रहे, तो जब तक मौका है, तब तक वो सारी चीज़ें कर लो जो 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 आपको मन कर रहा है, और धड़ल्ले से करो बिल म तो तो वही होता जा रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है थोड़ा-सा। सो आपने जैसे कहा गट फील is something that you pursued. So we would love to know some more tips for entrepreneurs, because uh, when you set out on an entrepreneurial journey, it is not easy. Like, there are certain responsibilities you have towards your families, certain dreams that you have. So there are a lot of things that are at stake. So people who want to set out on an entrepreneurial journey, they would love to have some tips from you as to how to navigate this journey. So there are two things which I'd like to highlight. One is like you said, their family है, ये सब है। एक जोक हुआ करता था बचपन में। एक बंदा, एक टीचर होता है, ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। तो वो अपने दोस्त को बोलता है, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कमाऊँगा। तो दोस्त बोलता है कैसे? मैं 2 ट्यूशन भी तो करूँगा। ओके। तो चक्कर क्या है? हाँ। सबका ये रहता है कि द रेलेवेंस ऑफ दिस थिंग इज़ दैट
जब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो तो आपका दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, आप पुराने माइंडसेट के साथ वो नहीं बन सकते। फैमिली में ये है, वो संभालना है, अपनी खुद की हेल्थ संभालनी है, दूसरों के एक्सपेक्टेशन संभालने हैं, वो सब ठीक है, पर हाउ बैडली यू वांट योर गोल। Yeah. 10th ग्रेड में मुझे पता था कि राजस्थान में रह के स्विमिंग चैंपियन नहीं बन सकते आप, इंडिया और इंटरनेशनल तो नहीं बन सकते। तो मैं गया था वहाँ, पर नहीं कर पाया मैं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को, तो मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। अगर आप वो एंटरप्रेन्योर हो जो आप गट फील आपको पता है कि ये करना चाहिए, पर उसके बीच में 50 चीजें और हैं। मान लो देयर आर मेनी पीपल हु आर इन कंफर्टेबल जॉब्स एंड दे आर सेइंग कि अगर मैं कंपनी खोलूंगा तो वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2012-13 में 15 में खासकर ये हुआ था मेरे साथ, जब कंपनी डूब गई थी मेरी और आईबीएम से ऑफर आया था, ऑस्टिन से, वर्बल ऑफर था कि आप वहाँ पे आके प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओ। तो मैंने इमेजिन किया कि दो ऑप्शन है, या तो जाके आप कृष्णा मेडिकल के ऊपर जो घटिया सा ऑफिस है अपना, उसका आप ताला खोलो और साफ सफाई करवाओ, आप अकाउंटिंग भी आप ही करो और खिचखिच भी आप ही करो, और अनसर्टन है कोई पैसा, पूरा पैसा अब तो पास्ट की बात बता रहा हूँ मैं भाई। इन अगस्त तो जीरो मनी, -20 lakhs में बैठे हुए थे। तो वो करना है कि वो करना है, ऑस्ट्रिन जाके बैठना है, ऑस्ट्रिन जाके बैठ सकते हो आप आराम से। सो अगर आप वो डिसीजन, आपका गट फील आपको बता रहा है, पर आप डिसीजन लेने में आप घबरा रहे हो बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, तो मत करो। और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। यू कुड टेक मेजर्ड रिस्क, यू Okay. कुड टेक स्मॉलर रिस्क। रिस्क लेना ही पड़ता है। Right. अगर आपको रिस्क लेने में डर लग रहा है तो आप मेजर्ड रिस्क ले लो, थोड़ा कम रिस्क ले लो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज देयर आर टू टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आई हैव सीन। मैं 40 इयर्स के एज, 40 प्लस में एंटरप्रेन्योर बना हूं, तो मुझे कुछ आता था, साइबर सिक्योरिटी Right. मुझे आता था, तो उसका बनाना। आजकल काफी जने 20s में बन जाते हैं। ओयो के जो सीईओ हैं, Hmm. वो बहुत वेरी यंग एंटरप्रेन्योर। आई फील दे आर ब्रिलियंट पीपल, but I've seen a lot of young folks who are trying to create companies with the sole reason of earning money. लक्ष्मी जी अगर आपको चाहिए, सरस्वती के पीछे जाना होता है, सरस्वती के पीछे जाओगे तो लक्ष्मी जी आपके पीछे आएंगी। Okay. यहाँ पे सब लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं होता, आपका कुछ स्किल भी तो होना चाहिए। तो वो देखते हैं कि Yeah. इतने 20,000 करोड़ की कंपनी बना ली, किसी ने 10,000 करोड़ की कंपनी बना ली, तो मैं भी करूंगा। हाँ करोगे, बट उसके लिए उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वो भी तो करना पड़ेगा। और हो सकता है भगवान ने उनको दिमाग में कुछ ब्रिलियंस दिया हो, मैं तो बहुत ही एवरेज बंदा हूँ। तो 40 इयर्स तक मुझे कुछ आ गया, तो मैं, और बाय चांस मेरी कंपनी बन गई। आई एम एन वेरी एक्सीडेंटल पर्सन, सो आई फील लाइक स्किल वाइज आपको कुछ स्किल करना चाहिए, उसके बाद आप कंपनी खोल सकते हो। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 50 के बाद कंपनी खोलते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनको कुछ आता है। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें भी कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो। मतलब आप अगर पैशन के लिए कर रहे हो ना वो, या सरस्वती के पीछे जा रहे हो, तो क्या होता है कि आपको रिजल्ट का इतना इतना डिपेंडेंस नहीं होता कि रिजल्ट अच्छा होगा तो ये अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको मजा तो आ जाएगा ना। हाँ. Yeah. आप वो काम कर रहे हो, यू आर लविंग इट, सो यू डू इट, वेदर उससे पैसे बने कि नहीं बने, दैट इज, अगर बन गए तो ठीक, नहीं बने तो मजा तो आ गया, हाँ. सुबह से लेकर शाम तक पार्टी हो रही है। Acha. So what do you think about work-life balance when you're just starting off? Is it easy to maintain a work-life balance, or there is no work-life balance at all? जैसे मैंने आपको बताया, सुबह 9 से 9:30 बजे मेरे को आदत थी कि मेरा स्क्रम हो जाना चाहिए। Yeah. मैं जाके सुबह ऑफिस खोलता था, और 9:30 बज गए, बच्चे नहीं आए अभी तक, स्क्रम करूंगा किसके साथ, मीटिंग Hmm. करूंगा किसके साथ में, 9:35 हो गया मेरे, तो मतलब गुस्से में मेरा 5 मिनट अगर लेट नहीं होना चाहिए, 5 मिनट पहले हो सकता है, 10 मिनट लेट हो गए, देन आई एम लाइक ईमेलिंग एंड कॉलिंग कि क्या हो रहा है, देन समबडी टेल्स मी सर छुट्टी है आज। Okay. Oh, so you. बहुत सारे दिन, बहुत बार हुआ है, होश ही नहीं है कि छुट्टी का दिन है कि वीकडे है। ये तब होता है जब आपका पैशन हो। अगर पैशन होता है तो क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या, मतलब क्या कर रहे हो, तो उसका मतलब वर्क एंड प्ले इज द सेम, Yeah. देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस नीडेड, वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क, सो एवरीथिंग इज गुड। I'm not under pressure at work. I'm enjoying it. I'm looking forward to my work. पैशन जो चीज है ना, वो ऐसा नहीं कि बचपन से पैशन एकदम निकल के आता है, पैशन जगाया जा सकता है। इफ यू आर पैशनेट, नॉट पैशनेट अबाउट समथिंग, बट यू से कि अभी एआई का बहुत ट्रेंड है, चलो मैं एआई में काम कर लेता हूँ, एआई में कुछ लर्निंग कर लेता हूँ, तो हो सकता है आपकी एआई में लर्निंग करते करते आपकी कंपनी खुल जाए कुछ। अ, बचपन से आपको एआई नहीं पता था क्योंकि एआई था ही नहीं उस समय, अभी है। तो इसको क्वाइट पॉसिबल कि आपने अगर बहुत मेहनत करी एआई फील्ड में, तो 4-5 साल बाद आपके सराउंडिंग में सब लोग तालियां बजाने लगे कि इस बंदे को एआई का इतना अच्छा है, इज लाइक रियली ओवर एंड अबव एवरीवन, ही इज Yeah. वर्किंग एंड ही इज डिलीवरिंग स्टफ।
तो ताली बजाते हैं तो पैशन जग जाता है और मेहनत करते हैं अपन। फाइनली अगर एक बंदा is very passionate about something and the other person is not so passionate. Let's say one person is very passionate about AI. Yeah. Other person is doing AI because AI में अभी ट्रेंड है और AI के बहुत बहुत पैसे मिलने वाले, AI लिख दिया रिज्यूमे में। तो जो कस्टमर होगा उसको पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा पैशनेट है और उसी Okay. को काम मिलेगा। अगर आप AI में पैशनेट नहीं है बट यू आर वर्किंग हार्ड इन AI बिकॉज वहां से ज्यादा पैसे ज्यादा मिलने वाले हैं, कस्टमर को पता लग ही जाएगा। So, sir, if given a chance, um, would you and if you could go back, would you do anything differently? I will do many things differently because I have learned a lot. I feel like सबसे जरूरी मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे कोई अनसर्टनिटी होती है या गोल होता है तो मैं बहुत एग्रेसिवली उसके पीछे लग जाता हूँ Okay. और मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता उस समय। उसके बाद जब सक्सेस मिल जाती तो बहुत विश्वास करता हूँ, थैंक यू भी बोलता हूँ और भगवान ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। बट जब कोई अनसर्टन सिचुएशन होती है आई डोंट trust him completely so that I'm very anxious and I'm very aggressive. Yeah. And my aggressive behavior reflects in my day-to-day work among my peers and it creates unnecessary stress. So अब मुझे लगता है कि कोई भी सिचुएशन आएगी तो शांति से उसको डील करना चाहिए मुझे। अगर मैं वापस से करूँ तो और शांति से करूँ जिससे कि मतलब अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो जाए। Okay. So वो मुझे एक बहुत बुरा लगता है कि this is one thing that I really want to improve on. You also said what is the vision for Mini Orange and cybersecurity company बनानी है। 200 करोड़ in it may be a big number in Banir. In the world, it is मतलब peanuts. Hmm. तो 0 से 200 करोड़ करने के लिए जो आपको एटीट्यूड चाहिए और 200 से 2000 या 2000 से 20,000 या 2 लाख करोड़ भी कर रहे हैं काफी लोग, और वो अलग चीज है, वो सीखना है मुझे। तो Okay. वो हड़बड़ी से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से वो सब नहीं पहुंचा जा सकता आई फील। तो वो सीखना चाहता हूँ। Last but not the least, what is that one quote or philosophy that resonates most with you? परिश्रम और अनुशासन इस सफलता। परिश्रम प्लस अनुशासन इस सफलता। अगर आप डिसिप्लिन वे में परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सरस्वती के पीछे जाओ तो लक्ष्मी जी मिलेंगी। जनगण मन बजवा देंगे एंड फ्री हेल्थ सर्विसेज फॉर द पुअर। These are the 3-4 mottos that I have in my life. Wonderful, sir. Thank you so much, sir. This brings us to the end of the podcast. It was a wonderful podcast, and I always keep telling you that you're an amazing storyteller. The entire podcast felt कि मैं कोई कहानी सुन रही हूँ. But thank you so much for all the tips. जैसे हम लोग भी just start कर रहे हैं. I know how the experience has been till now, and I do have some idea of how it's going to be in future. And आपने बहुत valuable tips दिए for us to navigate this journey. I'm pretty sure it would be helpful to the audience as well. And we wish you all the best. हम चाहते हैं कि आप Thank you. ओलंपिक्स में जनगण मन बजवाओ, and we would be at the sidelines Thank you. cheering for you. Thank you so much, sir, and thank you so much for everything that you're doing Thank you. for the society. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.